Okay, students, so you are watching Physics Studio channel, and this is the topic which you can see on the screen: electric field due to uniformly charged thin spherical cell. Okay, so we have to find out electric field. एक हमारे पास जो spherical cell है, okay, just consider it is a football. Okay, spherical cell है, spherical cell मतलब एक फुटबॉल है जिसके अंदर जो है खाली जगह है, बट सरफेस जो है कुछ क्लॉथ वगैरह का बना है ऐसे. Okay, means सरफेस है ऊपर से, inside it is empty. So all the charges are on the sphere. Okay, so I'll take you to the diagram. So this is the diagram, spherical cell है, all the charges are at the sphere. So ये चार्ज है ऐसे स्फीयर, जो रेड कलर का जो स्फीयर दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली ये चार्ज, ये स्फीयर हमारा मेन स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और बाकी के जो दो स्फीयर इनसाइड और आउटसाइड दिख रहे हैं वो गॉसियन सरफेस है. ओके, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और हम लोग को इस टॉपिक में ये स्फीयर है हमारा, और स्फीयर के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ. ओके, सेंटर से कोई भी एक पॉइंट पी पॉइंट है, और ये जो कि आर डिस्टेंस पर है. कितना डिस्टेंस सेंटर से? आर डिस्टेंस पर है. ओके, ये हमारा सेंटर है, तो आर डिस्टेंस पर है ये, और उस जगह पर हम लोग को क्या पता करना है, लेट मी रिमूव इट. उस जगह पर हम लोग को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो ये हमारा सेंटर हो गया जो कि आर डिस्टेंस पर है. सेंटर ओ हो गया, और आर डिस्टेंस से कैपिटल आर डिस्टेंस, बड़ा वाला रेडियस है बड़े स्फीयर का, कैपिटल आर. और ये जो हमारा मेन स्फीयर है, मेन स्फीयर, इसका रेडियस सपोज स्मॉल आर है. जो हमारा स्फेरिकल सेल है, मेन स्फीयर मतलब जो हमारा स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है. So this is the small r radius. Okay, so three topics we have to study, means what is the electric field, this point means outside the sphere, and secondly we have to what is the electric field at on the surface of the spherical cell, and what is the electric field inside the spherical cell, spherical cell के अंदर कितना है. But one thing you have to take care that all charges are on the surface, remember, are on the surface. So we have to find out by using Gauss theorem, because only Gauss theorem you can apply here. You cannot apply Coulomb's law or superposition principle, because it becomes very complicated, and very complicated mathematics required on that case, and it is not possible to calculate for you. Okay, so we will apply Gauss theorem. So our first topic is basically, first is what? Outside the sphere, electric field outside sphere, spherical cell actually. Okay, so according to Gauss theorem, according to Gauss theorem, Gauss theorem याद करो. Total flux over a closed surface E dot ds is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by that surface. Remember, enclosed by that surface. So we are interested to find out at this point. Okay, so it means we have to design a Gaussian surface, which we already designed. It is symmetrical. Okay, and all charges are enclosed inside these all charges are enclosed in this spherical cell, in this Gaussian surface. So simply, what is the surface of this big sphere, Gaussian surface area? So its radius is capital R. So while applying Gauss theorem, what you will put the integration of ds. This ds will be, integration of ds will be 4 pi r square. पूरे सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 pi r square ना, स्फीयर का सरफेस एरिया. Okay, so capital R is given, and how we will calculate total number of charge. So for that we have developed a different concept, that is charge, surface charge density, which can be written as sigma is equal to q upon a, that is charge per unit area. So therefore I am writing here, so therefore I can write q is equal to
sigma into area. What is the which area? Area of the spherical cell, not this sphere. Okay, students, area of the spherical cell. Okay, so what is the area of the spherical cell? So you can write sigma into 4 pi into small r square. Remember, this will be small r. Okay, this q upon epsilon naught total charge enclosed by that surface. So q, and this area is what? Basically area of sphere. Okay, students. Now, so now put the value. So according to Gauss theorem, what we can write here? Okay. So therefore, we can write E into 4 pi E dot ds, 4 pi r square is equal to sigma into 4 pi into capital R square divided by epsilon naught times. So this 4 pi will get cancelled. So E is equal to sigma r square upon epsilon naught r square. This is what magnitude of electric field, and vectorly you can write E vector is equal to sigma r square by epsilon naught r square. एक unit vector, what is the direction? R cap, direction normal to the surface. Okay, where r cap is what? R cap is unit vector. Cap is unit vector directed along along normal to the surface. Okay, so this is what your electric field. So this is your vectorly along the surface means किसी भी पॉइंट पर अगर आप पता करोगे तो ये जो डायरेक्ट along the surface, ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये डायरेक्शन में इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा. ओके, so this is what electric field outside the spherical cell. Now, what is the electric field inside the spherical cell? So when you will write Gauss theorem for on the surface means this P point will shift here. So this R capital R become small r because Gaussian, यही Gaussian surface होगा हमारा तब भी. ओके, तब हमारा Gaussian surface ये हो जाएगा. ओके, so Gaussian surface का रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा. So let's write down. Point number 2, when point P lies on the surface of thin spherical cell, okay, so what you can write here? So according to Gauss theorem, E dot ds is equal to q by epsilon naught, and in this ds, what is ds? ds is equal to 4 pi r square हो जाएगा, and q क्या हो जाएगा? Sigma into a, that will give sigma into 4 pi r square. R will be same here. Okay, and Gaussian surface वही है, small, we select our Gaussian surface whose radius which is spherical and radius is small r. So now we can write here, how we can write? So therefore E dot ds, it means what? So integration of E dot ds is equal to over the whole surface q by epsilon naught. So now put the value. E तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज करे तो E, so E will come out. E का इंटीग्रेशन नहीं होगा. So integration of ds is equal to q is what? Sigma into a upon epsilon naught. तो आप समझ गए होंगे कि आपका इक्वेशन आने वाला है. E is sorry, let me rough it.
so E into 4 pi r square is equal to sigma into 4 pi r square Gaussian surface का area divided by epsilon naught. So this 4 pi r square, this 4 pi r square will get cancelled. So what you will get? E is equal to sigma by epsilon naught. This is on the surface. Okay, on the surface, electric field on the surface of spherical cell, thin spherical cell. So vectorly how we can write electric field direction क्या होगा? Normal to the surface. So E is equal to sigma by epsilon naught, एक r cap जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा r cap is unit vector. Okay, r cap unit vector हो जाएगा आपका unit vector directed normal to the surface. Sorry, normal to the surface. So this is the electric field in case of on the surface. Now third point is electric field inside the spherical cell. So let's go to the diagram. So this is the diagram. So all the charges are on the surface of this spherical cell. जो red line dotted red line solid line है, that is our football, that is our spherical cell. Okay, and we are selecting this point. Suppose ये point मैं select करता हूँ. Let me draw. Sorry. ये लाइन में सिलेक्ट करता हूँ. सपोज ये R डैश लेता हूँ. तो व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट गॉसियन सरफेस. यही हमारा गॉसियन सरफेस होगा. सो गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं? सो स्टूडेंट्स, ऑल द चार्जेस आर हियर ऑन द सरफेस, और हम लोग सेल के अंदर आ चुके हैं. सो इनसाइड द सेल देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंट. if there is no charge, so how we can write? So let's write electric field inside the spherical cell. Third point, electric field inside spherical cell. Let's see. So since ऐसे लिख सकते हो, since no charge is present inside spherical cell, therefore integration E dot ds ऐसे लिख दो यहाँ पर according to, sorry, therefore Q is equal to 0. Therefore, according to Gauss theorem, integration over closed surface E dot ds is equal to Q by epsilon naught, but Q is equal to 0. Therefore, what we can write? E dot ds is equal to 0. It means देखो अभी ds तो 0 हो नहीं सकता है. क्यों? बिकॉज कुछ ना कुछ एरिया उस स्फीयर का होगा. ओके, इसका मतलब क्या है कि E यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0. Therefore E is equal to 0 inside spherical cell. ओके, सो स्टूडेंट्स 3 टॉपिक हमने पढ़ा. सो लेट्स रिवाइज वंस. बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर होने क्या हुआ, ग्राफ इसका कैसे होगा. सो नो, सो व्हेन आउटसाइड, सो आउटसाइड स्फीयर, तो हमारा ये r स्क्वायर जो यहाँ पर आया था. ओके, r स्क्वायर,
और इसके बाद फिर लोअर टर्म में आया था जो कि आर स्क्वायर बड़ा क्वांटिटी है कंपेयर टू दिस आर, तो ये आपका आर स्क्वायर से कम होते जाएगा। ओके, जैसे में अगर आप दूर जाते जाओगे तो आर ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप मान लो इस पॉइंट पता कर रहे हो, सो इन दिस केस आर विल इंक्रीज, सो इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो न्यूमरेटर क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ओके, एंड देन ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर देखो ऑन द सरफेस आपको जो है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पर आर का जो है कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इक्वेशन में हमारे आर नहीं आ रहा है। ऑन द सरफेस हर जगह सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। ओके, एंड देन इनसाइड, इनसाइड आ जाते हैं। सो इनसाइड क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो ग्राफिकली देखो यहाँ पर, तो चलो मैं इसको ग्राफ से बना देता हूँ, एक अच्छा नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में सपोज एक्स वाई एक्सिस लेते हैं हम लोग, ये ऐसे एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। ओके, और ये वाई एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं, ये तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस आर ले लेता हूँ, मतलब सेल के सेंटर पे हूँ या फिर सेल के जो स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पर हूँ, और वेदर आई एम गोइंग आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। सो उस केस में चलो एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर देते पहले। सो चलो मैं एक ये स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर देते पहले, ये पूरी ड्रॉ इट। सो ये आपका स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और जिसका कि सेंटर यहाँ पर आपका सेंटर है। तो सेंटर पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, हर जगह क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वाई एक्सिस पर जीरो है सेंटर पे, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे डॉटेड लाइन आएगा। ओके, कहाँ तक, अब देखो आर हमारा इस तरफ है, डिस्टेंस हमारा इस तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, अभी भी आप अंदर हो, यू आर इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यहाँ ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपका जो है, आपको जो है कुछ वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर ये ड्रॉ करने को, ऐसे जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पर। ओके, एंड इसको थोड़ा हम लोग डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये डॉटेड लाइन हो गया आपका। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ बेसिकली स्टूडेंट्स। सो आपका जो ये सरफेस पे आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, सरफेस पर, और इसके बाद अब अगर आप यहाँ पर आपका जो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। ओके, मतलब उसका रेडियस यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ओके, और इसके बाद फिर देखो ये कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है, वन अपॉन, अब आउटसाइड आप जब आ जाओगे तो आउटसाइड बेसिकली ये प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये सॉरी मैं इसको स्मॉल आर ले लेता हूँ जो हमने लिया है पहले। ये हमारा कैपिटल आर है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली स्मॉल आर, और ये हमारा कैपिटल आर है। जब आप जैसे जैसे बाहर जाओगे तो ये बेसिकली वन अपॉन आर स्क्वायर फंक्शन रिलेशन फॉलो करेगा, और ये ऐसे एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मेरा ग्राफ थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना, बट लेट मी रीड्रॉ इट, फिर से बना के बताता हूँ। बेसिकली ये आर स्क्वायर का फंक्शन फॉलो करेगा। ओके, ओके, so basically it will
कम लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ओके, तो ये आपका E इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r²। ओके, एंड सरफेस पे आपका यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 एंड Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर। ओके, एंड इन साइड यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, E इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड क्या रहेगा, यहाँ तक सब पूरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखो, अभी इसमें करना क्या है आपको, इस स्फीयर, सपोज आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आप हो और आपके पास एक मशीन है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, ये देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ऐसे से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सपोज आप चलते चलते यहाँ पर पहुँचे, वीडियो में बना देता हूँ, आपके हाथ में एक मशीन है। ओके, तो यू रीच्ड हियर, सो यहाँ तक आपको क्या, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जैसे ही आप सरफेस से पहुँचोगे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा, डिपेंड करता है कितना चार्ज है उस पर, और यहाँ मैक्सिमम मिलेगा। अब आप अगर और आगे जाओगे, इफ यू मूव फर्दर, तो आपका इलेक्ट्रिक, आपका डिवाइस क्या दिखाएगा, जो आपके हाथ पर डिवाइस दिखाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रहा है। सो दिस इज वॉट योर डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट। आप इस तरह से याद कर सकते हो, अगर आप ये डायग्राम एग्जाम में बनाते हो, यू विल गेट good marks for this diagram also। Okay, so thank you so much for watching, and if you like this video, you can share with your friend, you can subscribe this channel if you are new। Okay, so thank you so much for watching।